Hello, good morning my dear children of 10th class. I have come with some more sums. As you know, we are doing exercise 13.2, page number 248. The topic is volume of a combination of solids. Now, up to now I have done 4 sums of this exercise. Now today is I am going to do the 5th sum. Yes, you can well see, take out your notebook and start doing with me. I am reading and you also read it. Question number 5. This is a question. A vessel is in the form of an inverted cone like this. This is like a inverted cone. Cone को उल्टा करके रखा है. Its height is 8 centimeter. Its height is 8 centimeter. And the radius of its top. This top is open. This radius is of the top is 5 centimeter. You can draw like this. It is filled with water up to the brim. Up to the brim मतलब fully filled. लबालब भरा हुआ है. It is water. This is water inside this cone. This is full with water. Now what is the what is the problem? It is हो गया. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into a vessel. 1/4 of the water flows out. ये समझना है आपको. You are dropping lead shots one by one in the water. Water is filled up to the brim. When you drop spherical shaped water shots, the water will come out of the conical vessel, and you have to find out number of water shots dropped when one fourth of the water flows out. That means its volume, the volume of lead shot drop should be equal to the total volume of lead shot dropped. You have to calculate that. Number of volumes should be equal to the volume of 1/4 of the volume of the water. That means 1/4 of the volume of the conical vessel. तो आपको पहले conical vessel का वॉल्यूम निकालना है, उसका 1/4 करना है, उसको इक्वेट करना है लेड शॉट्स के बॉल के साथ. तो नंबर ऑफ बॉल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे सिंगल लेड शॉट के बॉल के साथ, उसको इक्वेट करना है. तो हम आई एम डूइंग सम लाइक दिस. यू फॉलो, यू स्टार्ट राइटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल वेसल. वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल वेसल. You well know this cone shape. So 1/3 1/3 pi r square h, where r is the radius, pi you know is equal to 22/7. R is the radius. This is, in this case it is 5 into 5 r square. 5 will appear twice, and height is 8. This is your, if you calculate it, you can also calculate further. So, but before that, you find out the 1/4 of the volume water which flows out. Now, 1/4 you can write like this. 1/4 of the volume of water that flows out. इस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा लेड शॉट के बॉल. सारे लेड शॉट का कंबाइन वॉल्यूम इसका बराबर हो जाएगा. इसका 1/4 करना है. तो यू कैन डू इट. 1/4 इंटू 1/3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8 इंटू पाई. सारे
नंबर्स को इधर लीजिए एंड लास्ट में पाई लिखिए। तो इसको आप करने के बाद हम देख सकते हैं 4 and 8 कैंसल्स आउट, तो 25 2 ज़ा 50 पाई, तो यू विल गेट 50 पाई। दिस इज 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। 50 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब, because volume is expressed in centimeter cube. 50 pi/3 is the 1/4 of volume that comes out of the conical vessel. Now to write here, volume of, let the number of lead shots drop, जो कि आपको निकालना, वो n लगा लो। Let the number of lead shots drop so that 1/4 of the volume of water comes out. तो ये आपको लिखना है। तो let the number of lead shots drop into the vessel. Let the number of lead shots, शॉट्स का मतलब गोलियां होती है, बंदूक की गोलियां, शॉट, गोल गोल गोलियां, उनको ड्रॉप किया गया। लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वाटर, मान लीजिए वो हमें निकालना है, दिस इज शुड बी, मान लीजिए x है या n है, n मान लेता हूँ, नंबर होना तो n ठीक है। इसको हम सिंगल वॉल्यूम लेड शॉट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको इक्वेट करेंगे इसके साथ, क्योंकि वही इसको रिप्लेस करेगा। वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट दे विल रिप्लेस वाटर, टोटल वॉल्यूम, तो वी विल कैलकुलेट देन टोटल वॉल्यूम। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वन कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, वन सॉलिड इज योर कोन, अनदर सॉलिड इज योर स्फीयर। तो आपको पता है स्फेरिकल शेप के हैं, यहाँ लिखिए आप वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट, वॉल्यूम को मालूम अच्छी तरह, वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट। तो आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस होगी। 4/3 πr³ होता है वॉल्यूम का, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। बॉल है, कोई भी चीज़ उसका जो अर्थ है, जो स्फेरिकल शेप होता है, उसका 4/3 πr³ होता है। r मीन्स रेडियस, तो रेडियस दिया हुआ है, पाई का पाई रखिए, r³ is here 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 will appear 3 times। तो ये आपका हो गया। अब हम थोड़ा बहुत देखते हैं, तो इसको कर देते हैं, आपको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 50/3 पाई ये हम ध्यान रखेंगे, इट इज़ इस साइड का, फिर इसको ऐड इक्वेट करना पड़ेगा। 53 this one, last one, 50 pi/3 centimeter cube. Now I will proceed further. Coming to this, your इसको थोड़ा बना लीजिए, simplify it। 4/3 pi into 0.5 means 1/2, half, into again half, into again half, 5.5 means 5/10 into बस 3 बार, thrice। तो you can do like this। इसको कट करिए 2 से, अगेन 2 से कट हो जाएगा, तो आपका ऊपर आएगा, आपका ये आपका आ जाएगा 4/3 है। तो हम इसको कर सकते हैं, आप पहले भी कर सकते, चलो ठीक है, ये आपका करके देख सकते हैं। ये 4 से कट गया, 2 ट्वाइस गया, ऊपर हो जाएगा पाई, ऊपर पाई आएगा, पाई शुड एट द टॉप, पाई, एंड एट बॉटम इज इट 6। π/6 इज द वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट। जब इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स, ये इसके इक्वल हो जाएगा 50 π/3 के, टोटल वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स।
total volume of lead shots n pi upon 6, these two are equal. So then do this, n pi upon 6 into 50 pi upon 3. तो आप देख लीजिए, n आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से. 50 पाई को क्रॉस कर दीजिए, 50 पाई इंटू 6 और नीचे आएगा 3 पाई आ जाएगा. पाई पे कैंसिल था और 3 और 6 को 2 पे जाएगा. यू विल गेट हियर एग्जैक्टली 100. 52 is 100. तो आंसर इज हियर 100 lead shots. तो आंसर, राइट डाउन द आंसर हियर 100 lead shots. Lead shots is the required answer. Shots. So this is the end of question 5. Now I will solve question number 6 before you. Now question number 6. A solid iron pole, this is a pole, iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter. Height of the cylinder is, there are two cylinders actually, that you will know later on. The lower one has a height of 220 centimeter and base diameter, this is the base diameter is 24 centimeter. If you halve it, you will get 12 centimeter is the radius. So I have written here 12 centimeter both sides. Total it is 24 centimeter. So 12 centimeter is the radius of base. Okay, which is surmounted by another cylinder. इसको ऊपर एक सिलेंडर को सरमाउंट किया रखा गया है, बिल्कुल ऐसा ताकि इसका सेंटर मिल जाए. एंड इसका जो हाइट है अपर सिलेंडर का ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर. आई हैव रिटन हियर 60 सेंटीमीटर, दिस इज हाइट ऑफ द सिलेंडर. एंड रेडियस इज 8 सेंटीमीटर. दिस इज 8 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ द टॉप ऑफ द आई मीन टू लोअर सिलेंडर एंड बॉटम ऑफ द upper cylinder. This is 8 centimeter. Find the mass of this, you can say radius of the upper cylinder. Find the mass of the pole given that 1 centimeter, this volume of iron has approximately 8 gram. In other words, density of iron is 8 gram per centimeter cube. So find out first volume, then multiply combined volume, then multiply with 8, multiply the figure by 8 and get the required result. ये मैं करने जा रहा हूँ. Volume of the lower cylinder. You know अच्छी तरह फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है. तो यहाँ पे पाई इंटू 12 एच इज हियर 220 and at last you write centimeter cube. All are dimensional in centimeter. Now volume of the upper cylinder. क्या हो जाएगा? पाई इंटू 8 इंटू 60 सेंटीमीटर. देयर कंबाइंड वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा. देयर कंबाइंड वॉल्यूम विल बी द वॉल्यूम ऑफ द होल ब्लॉक, होल पोल. देयर कंबाइंड वॉल्यूम. तो यू हैव टू ऐड. इसको ऐड करने के लिए आपको कॉमन लेना पड़ेगा. बिना कॉमन ये भी कर सकते हैं, बट दैट विल टेक टाइम. बेटर यू टेक कॉमन. बट बिफोर दैट यू राइट 12 इंटू 12 इंटू 220 प्लस. आप देख टेक्निक सीखिए.
बड़ी क्लासें हो रही हैं इस बार, तो आपको स्मार्टर और शॉर्ट मेथड अपनाना पड़ेगा। तो थोड़ा ध्यान रखिए, इतना मुश्किल नहीं है, इट इज़ ईजी। आपको एचसीएफ लेना पड़ता है। दोनों में देखिए 2 सेपरेट हो रहा है, ये और ये। तो पाई और पाई का, तो पाई को पाई बाहर कर सकते हैं आराम से। फिर देखिए 12 2 बार है और ये 8 एक बार हो रहा है। 12 8 का एचसीएफ 4 होता है। 4 इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड बोथ ऑफ देम। तो 4 इसमें से 4 उसमें से ले लेते हैं, तो ये जो बचेगा वहाँ लिख देंगे। तो आप यहाँ पे करिए, बाहर जो ले जाएंगे आउटसाइड द ब्रैकेट इट शुड बी एचसी ऑफ 12 and 8। तो ट्वाइस अपेयर हो रहा, तो एक 4 यहाँ, एक 4 यहाँ से लेंगे। और 220 60 का एचसीएफ कितना आता है? 20 आता है। आप करके देख सकते हैं। एचसी ऑफ 220 and 60 इज 20, तो 20 बहा ले, तो उसका आपका आराम से इसके आपके अंदर आ जाएगा। अब करेंगे, देखिए यहाँ से 3 बचेगा, 3 बचेगा और 11 बचेगा। तो यहाँ लिखिए आप 3 इंटू 11, ये स्मार्ट तरीका है। प्लस आप आराम से देख सकते हैं, यहाँ बचेगा 2 इंटू 2, 2 जगह से 2 आ रहा है, और यहाँ 60 और 23 बचेगा 3। ये आपका आ जाएगा योर वॉल्यूम, कंबाइंड वॉल्यूम। इस कंबाइंड वॉल्यूम को हम फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मास निकालना है। वी विल फाइंड आउट द, एज यू हैव टू फाइंड द मास, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 8। तो आप कर दीजिए इसको। तो यू कैन डू लाइक दिस, प्रोसीड लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आ जाएगा 16 इंटू 20, 32 पाई, 320 पाई, 320 पाई यहाँ मिलेगा आपको। ब्रैकेट में यू विल गेट 99, 3 3 ज़ा 9, 9 11 ज़ा 99, और यहाँ आपको मिलेगा 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। तो यू विल गेट हियर 320 इंटू 99 एंड 12, 111 नंबर्स एक तरफ, पाई लास्ट में। ये आपका सेंटीमीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ द होल ब्लॉक ऑफ द पोल। इफ यू मल्टीप्लाई विद 8 यू विल गेट द मास ऑफ द होल पोल इन ग्राम्स। तो 8 ग्राम दिया है, तो अभी से कर दो मास ऑफ द पोल। एट इंटू 8 मल्टीप्लाई बाई 320 इंटू 111। पाई की वैल्यू ही हैज गिवन, इट शुड बी टेकन एज 3.14, तो टेक इट एज 3.14। ये सब करने के बाद हम देखते हैं जो आंसर होता है वो आप करके कर लेना। 892.262.4, ये ग्राम में आएगा आंसर। आपको 3 साइड उधर डेसिमल सरका दीजिए तो आपको केजी में आ जाएगा आंसर, क्योंकि काफ़ी बड़ी फिगर है। यू विल गेट द आंसर इन केजी। 3 प्लेसेस यहाँ से, इधर से नहीं, ये तो अलग हो जाएगा। यहाँ से 3 प्लेस सरकाइए। मेन सॉलिड ग्राम ये है, तो यहाँ से तो आपका ये आ जाएगा 892.2624 kg। So in the answer you will find 2.26 kg. This is the answer. This is the mass of the pole. इतना केजी, बहुत भारी हो गया पोल। 892.26 kg, क्योंकि सॉलिड बना है ना। आप शुरू में देखेंगे सॉलिड बना हुआ है वॉल्यूम। सॉलिड नहीं हो तो आप नहीं निकाल सकते, मास से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो सॉलिड तो काफ़ी भारी हो गया। 890 1000 किलो से थोड़ा कम होगा पोल जो है। दिस इज द योर आंसर। So today I have come to my end. Tomorrow I will do the next sums. Okay.